Hello and welcome to the channel OIGenix, my dear students. In this video lecture, we'll be discuss chapter 3 of class 10th featuring English medium. Chapter 3 is being asked of 10 marks in board exams, where you'll get 2 questions of 3 marks, 1 question of 2 mark, 1 blank and 1 true false. So total chapter is of 10 marks, 6, 7 and 9 and 10. So let's start. First objective MCQs. Which metal exists in liquid form at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है? ब्रोमीन, गैलियम, मर्क्यूरी और ऑल ऑफ द गिवन. सबको इसका आंसर आता है. द आंसर इज मर्क्यूरी. नेक्स्ट, which of the following metal has a lower melting point? Gallium, cesium, both Nv or aluminium? The correct answer is gallium and cesium both. So the answer will be C. Both A and B. Third, which of the following is a shiny metal? Which of the following is a shiny metal? Iodine, carbon, nitrogen or bromine? So there is a bit of mistakes in options given below. We'll change the question, not metal but non-metal. यहाँ पे लिखना होगा non-metal. Shiny non-metal कौन सी है? Iodine, carbon, nitrogen or bromine? Then the answer will be iodine. Fourth, from the 3 allotropes of carbon, dash is the best conductor of electricity. I think ये भी सबको पता ही है. Fullerenes, graphite, diamond or all of the given. All of the given. कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है ग्रेफाइट, तो आपकी पेंसिल की लीड में भी होता है. Number 5. Generally, oxides of metals are dash. Oxides of metals are dash. Acidic, basic, amphoteric or not possible. So first हम लोग देखेंगे metal oxide कैसे होते हैं. So let's take a metal oxide, magnesium oxide. Let's react it with water. What will you get? You will get magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide which means base. So oxides of metals are basic oxides. Remember, which of the following is amphoteric oxide? Which of the following is an example of amphoteric oxide? Al2O3, ZNO, both A and B or CuO. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या? ऐसे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. तो आंसर कौन सा आएगा? सी, ए एंड बी बोथ. टेक्स्ट बुक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन दी हुई है और एग्जांपल के तौर पे जिंक ऑक्साइड का भी नाम दिया हुआ है. सो रिमेंबर द फैक्ट. 7th, what will be the molecular formula of the salt formed during the following process? Salt का molecular formula बताना. Al2O3 plus 2NaOH, which means aluminium oxide, metal oxide plus base NaLO2, Na2LO2, Na2ALO और Na2Al2O. So पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस बेस, तो आपको मिलेगा क्या? सोल्ट प्लस वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर को कट आउट कर लेंगे. H2O which means हाइड्रोजन, 2 तो हाइड्रोजन गए, एक ऑक्सीजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या? 2 सोडियम एंड 1 ऑक्सीजन. तो आंसर में आपके पास जो सोल्ट फॉर्म हो रहा है उसमें सोडियम 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होना चाहिए. सो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2. सोडियम कितना है? 2. तो हम यही चेक करेंगे. एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1. सोडियम 1. तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है. सोडियम 2 एल्यूमिनियम 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं. सोडियम 2 एल्यूमिनियम 1 ये भी पॉसिबल नहीं. सोडियम 2 Al2, लेकिन Na2Al2 ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये भी गलत. तो आंसर क्या आएगा? तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शंस में. यहाँ पे आगे हमको 2 ऐड करना होगा एज अ कोएफिशिएंट, देन विल गेट 2NaLO2 सोडियम एल्यूमिनियम. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो याद रखना है. नेक्स्ट, which of the following order of reactivity of metal is correct? MgAl ZnFe, MgFe ZnAl, Fe ZnAl Mg, MgAl ZnFe. So remember the fact Mug-al-Zanfi. Remember that Mug-al-Zanfi.
which means MgAlZnFe। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एरो यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो सबसे रिएक्टिव कौन है? Mg मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर Fe आयरन। ठीक है, मगल जन पे याद रखना है, इजीली आपको याद रख जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन? कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या कौन सी मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, ऑल ऑफ द गिवन। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन। हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू प्रिवेंट कोरोजन। Now blanks. Number 10. More reactive metals like sodium and potassium are kept in dash. तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं या किसी अदर सब्सटेंस में रखते हैं? सो करेक्ट आंसर इज केरोसिन और एनी अदर ऑयल। क्यों? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल. So when you keep it in air, it will react with the oxygen or moisture present in the air. That's why we have to put it in the kerosene or other oil. 11. Solder is an alloy of dash and dash. Solder किसकी alloy है? PbNSN. Lead or tin. So याद रखना है alloys सारे. 12. If the surface of iron is exposed to moist air for a long time, it gets rusted. This event is called dash. So simple answer is corrosion. ऊपर ही अभी आया है corrosion, इसको क्या बोलते हैं? corrosion. Number 13. Fill in the blanks to complete the following equation. Al2O3 plus 2NaOH dash. तो यहाँ पे आपको पता ही होगा अभी salt आएगा और water. तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी हमने solve किया है 2NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट। सो एम्फोटेरिक रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आपको ये रट लेना है पूरा। नाउ ट्रू और फॉल्स। One true false and one blanks are being asked from this chapter as objectives. Number 14. 24 karat gold is known as pure gold. Is it correct? Yes. 24 karat gold is known as pure gold. आपका जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन टॉपिक है, उसके नीचे लाइट ऑरेंज बॉक्स में यही फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। और जो प्योर गोल्ड होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है। ब्रास एलॉयज आर यूजफुल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग, ब्रास यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? सोल्डर यूज होता है। 16. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम मेटल इज Ke2 सो आंसर इज करेक्ट। ये आपका 9th में भी आ चुका है, आपको बहुत इजीली आता होगा। Very active metals or very reactive metals like calcium and aluminum are used as reducing agents. So यहाँ पे आंसर आता है थर्मिट रिएक्शन दिया हुआ है, उसके जस्ट पहले की पेज में नीचे आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्यों ये दोनों यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे? क्योंकि कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर कैपेबल टू रिएक्ट टू डिस्प्लेस द मेटल्स व्हिच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर इसको यूज करते हैं। When a silver object is exposed to air, it reacts with sulfur in the air to form a layer of silver sulfide. ये भी करेक्ट है। सिल्वर को अगर एयर में एक्सपोज करोगे तो सिल्वर सल्फाइड का लेयर फॉर्म होगा और वो लेयर का कलर होगा ब्लैक। फॉर एन एग्जांपल, ये लक्की मैंने हाथ में पहनी है, तो चांदी के आपके घर पे कोई भी ऑर्नामेंट्स या किसी भी चीज हो चांदी की या फिर आप सिल्वर की बोलो, तो उसके सराउंडिंग्स में आपको ब्लैक कलर की एक लेयर दिखेगी। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द सिल्वर रिएक्ट्स विद द सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। नाउ वन वर्ड, वन सेंटेंस। Which is the most ductile metal? Every student knows the answer. Gold. Which metal burns in air with a white dazzling flame? If you know the chapter 1 activity 1.1, the answer is very simple. Magnesium, white dazzling flame. What is the aqua regia? Aqua regia क्या है? Aqua regia के लिए लैटिन वर्ड है royal water. An aqua regia is a concentrated mixture of two acids, HCl and HNO3, in the ratio of 3:1. It is very able to dissolve gold, platinum metals. Name one amphoteric oxides. We will name two amphoteric oxides, not one. First one is aluminum oxide, other one is zinc oxide. ठीक?
रट्टा मार लेना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। 23 कंप्लीट द प्रोसेस MgO वाटर डैश मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर की रिएक्शन करोगे तो यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड व्हिच मींस MgOH प्लस। चैप्टर 1 में ऐसा ही सेम रिएक्शन हम देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या मिलता था आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइन ब्लैंक्स मैच द कॉलम। मैच द कॉलम से इस चैप्टर में से पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी लग याद कर ही लेते। लिक्विड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का लिक्विड फॉर्म कौन सा है? तो सीधा नीचे आएगा ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। मेटल इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी। साइनी मेटल कौन सा है? साइनी मेटल आयोडीन, लेकिन यहां पे आएगा नॉन मेटल। मेटल विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स तो आएगा सीजियम। सीजियम का स्पेलिंग यहां पे गलत है। नेक्स्ट, when silver objects are exposed to air, अभी हमने देखा when silvers are exposed to air it reacts with the sulfur present in the air and forms silver sulfide, black layer of silver sulfide। reaction of copper with carbon dioxide in air, so simple है green layer of copper carbonate। कॉपर दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, यू कैन जॉइन। इसके लिए आपको याद रखना है बेस्ट एग्जांपल जो भी दे रहा हूं आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, वो पूरा स्टैच्यू अभी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा लेकिन जब बना इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, सो द फर्स्ट कलर ऑफ द स्टैच्यू वाज ब्राउनिश लाइक कॉपर, बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन किया सालों साल और अभी इसका कलर कौन सा हो गया? ग्रीन कलर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो आपको इजीली याद रह जाएगा। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ आयरन टू मॉइस्चर, तो एक ही बचे ब्राउनिश लेयर ऑफ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, लेकिन ब्राउनिश नहीं, कौन सा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन। ओके, तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट टाइम के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।